Hello and welcome to another lecture, lecture number 33 for standard 12, chapter number 3. It's electrochemistry. And today we are going to discuss a topic called quantitative aspect of electrolysis and Faraday's law. कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एनोड एंड कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड्स है उन पर सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपोजिट होता है, या अगर कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तो वो इवॉल्व होगा. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट गेट्स डिपोजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस दैट गेट्स इवॉल्व इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली and Faraday provided law regarding the amount of a substance produced at a respective electrode called Faraday's law of electrolysis. He studied relation between the current passing through the electrolytic solution and the amount of a product obtained on respective electrodes called Faraday's law of electrolysis. Let's see the theory first for the Faraday's law of electrolysis and two laws for the Faraday called first law and the Faraday's second law. Relation between the amount of a substance liberated at electrodes during electrolysis and the amount of current passed was studied by Michael Faraday. As I mentioned, Michael Faraday ने एक स्टडी के अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास किया सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रोड्स है उस पर जो डिपोजिट होने वाला सब्सटेंस था उसको मेजर किया, और उससे वो जो कंक्लूजन पर आया उससे दो लॉज डेवलप किए, Faraday's first law and Faraday's second law for the electrolysis. We'll go through the statement of first law of Faraday. The amount of chemical reaction and hence the mass of any substance deposited. कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जाती है और इनिशिएट की जाती है, देन द रिएक्शन प्रोड्यूसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड द मास ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड. एज आई मेंशन, अगर सॉलिड सब्सटेंस होगा तो वो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होगा, लेकिन अगर गैसियस सब्सटेंस होगा तो वो लिबरेट होगा. इसलिए मेंशन किया है द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड. एट any electrode means anode or cathode is directly proportional to quantity of electricity passed. मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर. अब ये जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है W varies to Q. W means weight of a substance that gets deposited or liberated. It is directly proportional to the quantity of electricity passed. Electricity जो quantity है उसको Q से डिनोट करते हैं. Q इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी है उसको कूलम यूनिट में मेजर किया जाता है. So W varies to Q. Now साइन जो है वेरीज की उसको हटा के हमने इक्वल टू डाल दिया, and we have taken a constant called Z. This constant Z is called constant of proportionality. It is also known as electrochemical equivalent. Z का मतलब electrochemical equivalent होता है. So the final formula is W is equal to Z into Q. Physics में पढ़ चुके हो that Q is equal to IT. हम ये कह सकते हैं क्यू आई थी तो आई थी. नाउ इट इज Q is equal to IT. Q means quantity of electricity. The quantity of electricity is equal to electric current into time taken for passing that electric current. मतलब कितने टाइम तक वो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, वो टाइम और इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्ट है will provide us quantity of electricity. जो quantity of electricity है उसको Q से डिनोट करते हैं. Now we'll replace Q by IT. So the formula becomes W is equal to ZIT. Most handy formula called first law, Faraday's first law for the electrolysis. The formula produced by the first law is W is equal to ZIT. W is equal to ZIT called Faraday's first law. Now we have second law for the Faraday.
Faraday's second law for the electrolysis. Let's see the statement. When the same quantity of electricity pass through the solution of a different electrolytes, when the same quantity of electricity pass through a solution of different electrolytes connected in a series, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को दूसरे के साथ सीरीज में जुड़ा गया है, मतलब एक एनोड की तरह बिहेव करेगा, दूसरा कैथोड की तरह, उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं. The mass of the substance produced at electrodes are directly proportional to their equivalent weights. They are directly proportional to their equivalent weights. Equivalent weights. It's a statement called the second law of the Faraday. Now, to understand this statement, मैं यहां पर दो सेल्स ले रहा हूं, हाफ सेल, जिनको मैं सीरीज में जोड़ूंगा. जो पहला सेल है उसमें AgNO3 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, और उसको मैंने जोड़ दिया है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO. बट ऑब्वियसली अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाएंगे. ये इलेक्ट्रोड्स को आउटर सर्किट में जोड़ा जाएगा थ्रू बैटरी. इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज वगैरह जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए वो सब होंगे. लेकिन इट्स नॉट अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मैं गलती कर दिया है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको हमने सीरीज में जोड़ा है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है कि एक ही सेल के अंदर एनोड और कैथोड, मतलब मैं यहां पर AgNO3 का सॉल्यूशन ले रहा हूं, AgNO3 सॉल्यूशन, उसमें ही इलेक्ट्रोड्स है, दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड. अब दूसरा सेल ले रहा हूं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इट्स नॉट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल होता है. ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें भी इलेक्ट्रोड्स है, एनोड एंड कैथोड. इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया है, एनोड टू एनोड, कैथोड टू कैथोड. अब जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक करंट? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन वी आर पासिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the amount of a substance produced is directly proportional to their equivalent weights. अगर इसको मुझे स्टेटमेंट को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, which is mass of Ag deposited, mass of Ag deposited upon mass of Cu deposited. Cu एक सिल्वर है, एक कॉपर है. So mass of Ag deposited upon mass of Cu deposited is equal to equivalent weight, EQ weight of Ag upon EQ weight of Cu. In short, it is directly proportional to their equivalent weights. The amount of substance that deposited is directly proportional to their equivalent weights. तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. नोटबुक निकाले फटाफट. दोनों स्टेटमेंट और दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले, लेकिन उससे पहले ये फॉर्मूलाज जो लिस्ट लिखी है जल्दी से कॉपी कर ले. दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे और ये जो दो फॉर्मूला है जल्दी से.
आपने ये कॉपी कर लिया होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद लेक्चर 33 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फैराडेज लॉ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। स्टे ट्यून्ड।